Good morning, friends. First of all, I would like to thank all of you for taking time on a busy weekend because it's a long weekend and most of the people would be planning a lot of outings. But instead of that, you people have taken time to attend this webinar. So it's a good thing that I'm seeing at least almost around 140 people, 142 people who are part of this webinar. It's nice that you people felt this is more important. So. It's a good thing. So a lot of thanks from my side. So today's topic, which we'll be talking, rather the webinar which I'm going to conduct, is based on price action trading. So price action trading is something which interests a lot of people because prices are something which keeps on moving. You know, whenever you trade anything, let it be stocks, let it be commodities, currencies, anything which is traded has got a price movement. And as a trader, if you need to be, catching the price action, so you should understand the basic tenets, the basic foundation of price action trading so that you can be a good price action trader. Now, this webinar, what I have made as a presentation today, will give you a basic understanding of what is price action trading and, how do we approach it, what are the strategies and how can we take use of those strategies. So let us start with the PPTs. Just give me a minute, please. So let's start with the PPTs. Now, the first most important thing which everybody needs to understand about price action is if you would like to be a price action trader, you need to basically understand the trend of the underlying. When I mean the trend of the underlying, I mean the stock or the indices or anything which you decide to trade. You need to have an understanding of the trend. And the trend normally has got two or three different parameters within itself. One is an extremely short-term trend. The second is the medium-term trend, and the third is the long-term trend. Now, as far as price action trading is concerned, as a trader, you should be concerned more with the extremely short-end trend of the stock or the indices. But having said that, if you have an idea of the medium and long-term trend, it will also help you in giving a lot of trading ideas. But nevertheless, you should be having a clear understanding of what is going to happen on the short end of the curve so that you are able to take advantages. So this is something very basic, but I thought it is important. So we'll start with the four basic tenets of trends, which we all understand. One is the bullish trend, the second is the bearish trend, third one is the sideways or choppy markets, and fourth is extremely flat markets. Now, for any trader, let it be a price action trader or a trend trader or a swing trader, the first two matters a lot. I mean, the bullish and bearish trend. Probably sideways trend may also help price action trading, but you have to be very fast because the chances of hitting stop losses are extremely high in sideways market because it doesn't give you a definite trend. So bullish and bearish, these are the two trends where if you're able to identify the trend, you will be able to get very good trading setups in terms of price action strategies. So this is first and foremost. So whenever you start trading using price action strategies, you need to understand the trend before you get into the trading part. Now, what are the key requirements of price action trading? Let us spend some time. A key and very important requirement to learn and price action trading is the skill of reading and understanding price movements. Now, what do you mean by price movements? Now, price movements is nothing but movement of the individual stock or the individual indices. Now, whenever you sit in front of the screen, you might be seeing that there are certain areas when the prices pause. There are certain areas when you see rapid price movement happening. There are certain areas when the price is correct. So you need to understand all these things very clearly so that you are able to proceed with your price action trading. Just give me a minute, please. Just give me a minute. तो प्राइस प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है? फर्स्ट थिंग इज आपको ये समझना जरूरी है कि जो स्क्रिप्ट या जो इंडेक्सेस में आप प्राइस एक्शन करने वाले हैं उसका मोमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब किस जगह पे ये रुकता है, कहाँ से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, कहाँ से इसमें मतलब भाव गिरने का चांसेस है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस एक्शन इज अ हाई वॉल्यूम गेम। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा प्राइस मूवमेंट के लिए ट्रेड करने वाले नहीं हैं, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू ट्रेड इज प्रॉब्ली 2-3 रुपीज मूवमेंट विच इज़ वेरी फास्ट। इसके लिए आपको थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें रखना होगा ताकि आप पैसा बना सकें। अगर आप कम वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से आपको घर पे कुछ पैसा नहीं बनेगा। इसके लिए इसमें ज़रूरी है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें, अच्छा है, या अगर आप कैश वॉल्यूम में भी ट्रेड करते हैं कैश मार्केट में तो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करना ज़रूरी है, तब जाके कुछ पैसा बनेगा। नहीं तो एंड ऑफ द डे में आप देखेंगे पैसा बन गया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके हाथ से निकल गया तो कुछ बना नहीं पैसा। इसके लिए वॉल्यूम थोड़ा हाई होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको मार्जिन भी रखना होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी जो याददाश्त जो बोलते हैं, द मेमोरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज ए सेड, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस, ये जो इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट्स जो चार्ट्स में होते हैं, ये आपको हर एक स्क्रिप्ट की याद रखनी होगी, बिकॉज मार्केट इतना फास्ट भागता है कि आपको ज़्यादा टाइम लाइव मार्केट में मिलेगा नहीं कि आप सोचे और एक्शन लें। अगर प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान में होना चाहिए, और जैसे ही लेवल्स आपको दिखती है वहाँ पे आपका ट्रेड पंच होना चाहिए इमीडिएटली। इसके लिए प्राइस मूवमेंट्स, अगर प्राइस एक्शन करना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं चार्ट्स में, इसको प्लॉट कीजिए और इसको अपने मतलब ब्रेन में, आपके इंटरनल सॉफ्टवेयर में आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि आप सूटेबल एक्शन ले सकें। प्राइस एक्शन रिक्वायर्स हाई स्पीड एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको चार्ट्स भी देखने होंगे या जो भी आप सिस्टम देखते हैं उसके साथ आपको ट्रेडिंग जो आपके टर्मिनल है उसमें आपको एग्जीक्यूशन भी फास्ट करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसका आप एनालिसिस कीजिए कि अगर आप कर पाएंगे। अगर आप स्पीड के साथ नहीं कर सकते तो प्राइस एक्शन में आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई ये एक फुल टाइम जॉब है एंड आपको स्क्रीन के सामने मार्केट के टाइम पे बैठना होगा। आप मार्केट से दूर जाके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज मूवमेंट्स इतने फास्ट होते हैं कि आपको लगेगा कि ट्रेड प्रॉफिटेबल है, बट बाय द टाइम यू कुड एग्जीक्यूट, इधर आपका भाव गिर गया या आपके भाव से नीचे आ गया और आपको लॉस बुक करना पड़ा। इसके लिए इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड लॉट ऑफ फोकस। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी जो है बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन में आप लोगों से एडवाइजरी या दोस्त के साथ फोन में बात करना या कोई एक्सपर्ट को पूछना मार्केट क्या लगता है, इसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो डिसीजंस आपको ही लेना है। इसके लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मतलब आप जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं या आप जो सोचते हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि दिस ट्रेड एट दिस लेवल आई हैव टू ट्रेड, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर ट्रेड नहीं चला तो जितने जल्दी हो सकता है आपके लॉसेस को कट करें एंड उसी तरह से प्रॉफिट्स भी जब दिखता है तो बुक करें। बिकॉज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी छोटे होते हैं और प्रॉफिट टारगेट भी छोटे होते हैं, ताकि आप ज़्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव ए पॉजिटिव बुक। पॉजिटिव बुक का मतलब है कि नेट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यू एंड द डे ऑन ए प्रॉफिटेबल नोट, इवन टेकिंग द चार्जेस। बेसिकली आपकी जो ब्रोकरेजेस होते हैं, गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है, ये सब आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में है, ये स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट प्राइस एक्शन में ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज व्यूज एंड एन एटीट्यूड टू टेक रिपीट ट्रेड्स। अभी व्यूज की मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको कोई चार्ट में तेजी दिख रही है, बट ड्यू टू सम रीजन कुछ खराब न्यूज आ गया या कुछ मार्केट में ऐसे हो गया कि आपका व्यू तेजी है लेकिन मार्केट मंदी की तरफ चल रहा है, तो आपको इमीडिएटली आपका तेजी का व्यू चेंज करके यू हैव टू शॉर्ट द स्टॉक। उस टाइम आप ये आर्ग्यू नहीं करेंगे कि मेरा स्टडी बुलिश था। ठीक है, आपका स्टडी बुलिश था, बट बाजार और ही कुछ बोल रहा है, तो आपको व्यू आपके फास्ट चेंज करने होंगे एंड यू हैव टू क्रिएट अ शॉर्ट पोजिशन इफ यू हैव टू बी अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि हम एक ट्रेड लेंगे, शायद 2-3 बार आपके रिपीटेडली स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, बट चौथे बार आपको वो ट्रेड में रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो आपको रिपीट ट्रेड्स लेने के लिए भी एक क्षमता बनानी चाहिए। यू शुड बी रेडी टू टेक रिपीट ट्रेड। यू कैंट से कि एक बार मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके बाद मैं नहीं लूंगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको एक्सपर्टीज गेन करना है। तो ये सब ज़्यादा करके अगर आप देखेंगे तो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ये निर्भर करता है। तो ये चीज़ को आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा प्राइस एक्शन में आपको मिलेंगे, बिकॉज योर रिफ्लेक्सेस, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग शुड बी वेरी फास्ट एंड वेरी फ्लेक्सिबल।
ये स्लो गेम नहीं है, ये बहुत फास्ट गेम है। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसका नाम है टाइम टाइम कॉन्सेप्ट्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। नो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कॉन्सेप्ट्स? देखिए, जो भी हम स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, आई मीन वॉट एवर स्ट्रैटेजीज वी यूज, ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रैटेजी आपको सब सिचुएशन में काम आएंगे। कोई कोई स्ट्रैटेजीज ऐसे स्पेसिफिकली होते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेडिंग हावर्स में इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गारंटीड सक्सेस होगा, बट उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग पीरियड में अगर आप ये स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो द चांसेस ऑफ दैट ट्रेड वर्किंग, द प्रोबेबिलिटी इज मच बेटर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. So that is what I mean by time concepts in price action trading. So when you approach price action trading, the approach in combination with specific time periods during trading hours, the approach makes price action trading very profitable. Certain events generally occur at specific time periods. Hence, it is very important to understand those events and try to profit from them. अभी events का मतलब क्या है, ये हम जैसे आगे जाएंगे PPTs में, आपको इसमें clarity आएगी. The tools to identify those time period based trading opportunities can be either manual screening or a software based query which can give specific need based outputs. अभी मान लीजिए हम स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से हमने स्ट्रैटेजीज तैयार की है, तो उस टाइम पे अगर हमको चाहिए कि कुछ आउटपुट मिले, मान लीजिए हम 50 स्क्रिप्ट को ट्रैक करते हैं और 3 या 4 स्क्रिप्ट में ये इवेंट होता है, या वो पर्टिकुलर टाइम पे वो डेवलप होता है उस स्क्रिप्ट में, तो उसको देखने के लिए अगर हमको मैनुअली हम फास्ट स्क्रीनिंग कर सकते हैं तो बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि आपकी उतनी स्पीड नहीं है, आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे, तो कोई अच्छे से पेड सॉफ्टवेयर या कोई टूल होना चाहिए जो आपको उस टाइम पे आउटपुट देता है कि आउट ऑफ 20 स्क्रिप्ट आपने बोला कि ये 3 या 4 स्क्रिप्ट में ये कंडीशनलिटी है, तो ये 4 स्क्रिप्ट में ये पैटर्न या ये देखने को मिला है, जिससे आप इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हैं। सो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइदर ए गुड सॉफ्टवेयर और सम अदर टूल, जैसे कोई अलर्ट्स हो या कोई बाकी के टूल्स हो आपके हाथ में रहना जरूरी है, या आपको मैनुअली चार्ट्स को स्कैन करना हो। So that depends on individual speed and individual approach, but some tool has to be there, otherwise आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ फोकस करना है। Now time concepts में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। Like certain strategies work best during market openings and around the first 1 hour of trading. These are mainly early morning strategies. Timings are preferably from 9:50 till probably 11:30 a.m. तो जैसे हमने बोला कि एज ए ट्रेडर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस टाइम पे कोई स्ट्रैटेजीज हैं जो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 9:15 से 11:30 तक आप मार्केट में रहे, एंड उसके हिसाब से आपके आउटपुट्स जो है, जैसे मैंने बोला था, मैनुअल स्कैनिंग हो या ऑटोमेट क्वेरी हो या जो भी है, आपके सिस्टम से आपको आउटपुट मिलना चाहिए ताकि आप ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज ये बहुत एक्टिव टाइम है एंड बहुत सारे प्लेयर्स इस टाइम पे होते हैं, तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इज इम्पोर्टेंट। और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपको क्या स्क्रिप्ट में क्या एक्शन लेना है। तो सब कुछ एक साथ एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, तो इसके लिए प्लानिंग एंड डिपेंडेंसी ऑन सम सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मिड मार्केट स्ट्रेटेजीज ऐसे हैं जो टिपिकली दोपहर के टाइम पे होते हैं, मतलब मान लीजिए 11:30 से 1-1:30 बजे तक का जो चलता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पे मार्केट थोड़ा सा डल रहता है, ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, बट उस टाइम पे भी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको काम कर सकते हैं। जैसे कोई पैटर्न ब्रेकआउट्स हो सकता है या कोई न्यूज़ ड्रिवन होता है, तो उस टाइम पे मार्केट एकदम अचानक से उस पर रिएक्ट करता है, तो यू हैव टू बी अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम्स, एंड मिड मार्केट स्ट्रैटेजीज उस टाइम पे आपको काम में आएगा। सो प्रेफरेबली लेट मॉर्निंग से लेके अपने लंच टाइम 1:30-2 बजे तक ये स्ट्रैटेजीज उस टाइम पे अच्छे से काम कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी पैटर्न्स नॉर्मली ब्रेक होते हैं, तो पैटर्न्स की कोई टाइम नहीं होती है, और ऐसे टाइम पे अगर ब्रेक हुआ तो यू हैव टू बी रेडी टू टेक दोस ट्रेड्स। एंड डे एंड स्ट्रेटजीज जो आपको पता होगा इस टिपिकली अगेन एक्टिव मार्केट जब होता है दोपहर को 2 से 3:30 के बीच में, अगर आप देखेंगे तो फिर से मार्केट में नॉर्मली अच्छे बाइंग होती है या सेलिंग होता है, तो एक ट्रेंड डेवलप होता है इंट्राडे पे। तो उस टाइम पे देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज जो आपको अच्छे से काम करने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको अगेन रेडी रहना होगा कि अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो आप उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजीज के साथ आप काम करें। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज आपको डिवाइड करना है, एंड यू हैव टू सी विच सूट्स यू बेटर
एंड उसके हिसाब से अगर आप रेडी रहेंगे तो यू विल बी मच फास्टर एंड अपॉर्चुनिटीज को जल्दी ग्रैब करने में आप रेडी रहेंगे। हम थोड़ा सा अभी देखेंगे जो स्ट्रैटेजीज हमने बात की है डिफरेंट टाइम्स में, इसमें कौन से स्ट्रैटेजीज कब हमको काम में आ सकते हैं। अभी कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजीज हैं जो नॉर्मली सब मार्केट में काम करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि जिस हिसाब से कैंडल फॉर्म होते हैं उस हिसाब से हम अगर ट्रेड करेंगे तो दिस कैन बी रेगुलर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन प्राइस एक्शन। मतलब आप मॉर्निंग में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, आफ्टरनून टाइम से भी ये काम में आते हैं, और एंड ऑफ द डे जो दोपहर के टाइम पे है, तो मतलब ये ऑल वेदर स्ट्रैटेजीज हैं। So good opportunities to trade price action is possible using candlesticks in live markets. Few strategies with good risk reward ratios can be breakouts. ये एक अच्छे हैं कैंडल ब्रेकआउट जिसकी बात करते हैं हम लोग। ये अगेन टाइमिंग का इसमें कोई निर्भरता नहीं रखता है, जैसे बाजार ट्रेंड दिखाते हैं उस हिसाब से आप कैंडल ब्रेकआउट्स देखेंगे। एंगल्फिंग कैंडल्स जैसे बनता है, मान लीजिए अगर आप 15 मिनट कैंडल्स में काम करते हैं, बड़ा सा एंगल्फिंग कैंडल बना है, तो प्रोबेबली एक प्राइस एक्शन में आपको अच्छे ट्रेड मिलेगा जब अगला कैंडल उसके हिसाब से ओपन होता है। गैप अप्स और गैप डाउन जब बाजार में होता है 9:15 बजे, ये एक अच्छे स्ट्रैटेजी है। अगर आप गैप के साथ इसको ट्रेड करेंगे तो अच्छे लेवल्स मिलेंगे आपको। एंड जो सिंगल कैंडल स्टिक, डबल, टू कैंडल स्टिक, थ्री कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न्स बोलते हैं, उसमें भी जैसे हैमर्स होते हैं या मल्टीपल कैंडल स्टिक्स के एंगल्फिंग जैसे 2-3 और जो पैटर्न्स हैं, इसको आप लाइव मार्केट में कोई भी टाइम मतलब आप ट्रेड कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम पे, आफ्टरनून या लेट मतलब बाजार बंद होने के टाइम पे भी। जो टाइम फ्रेम में आप देखते हैं उसके हिसाब से अगर आपको कैंडल्स में अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो यू कैन डेफिनेटली हैव ए गुड प्राइस एक्शन ट्रेड। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज आप ट्रेड कर सकते हैं, अगेन ये भी मतलब मार्केट के हिसाब से ड्यूरिंग द डे कभी भी इसके अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं, जैसे कंजेशन जोन्स जो बोलते हैं। जैसे मार्केट आप देख रहे हैं कि एक रेंज पे है और सडनली एक रेंज ब्रेकआउट होता है, तो अगर आपने लाइंस ड्रॉ की हैं आपके चार्ट्स में, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, या आपने कोई ट्रायंगल्स या ऐसे कोई कंजेशन जोन्स आपने मार्क किया होगा, तो जैसे ही जोन ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएटली दैट इज द बेस्ट एरिया टू ट्रेड प्राइस जोन, प्राइस एक्शन, बिकॉज उस जोन पे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चेंज होता है, सडनली डिमांड बढ़ेगा या सडनली सप्लाई बढ़ेगा, तो एक अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएगा विद अ वेरी गुड स्टॉप लॉस। तो कंजेशन जोन्स को मार्क करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मल्टीपल टॉप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने आपके एंड ऑफ द डे चार्ट्स में देखा है कि बाजार एक मल्टीपल टॉप में बंद हुआ और कल जैसे ही खुला थोड़ा सा नीचे खुल गया, तो वो मल्टीपल टॉप को आप स्टॉप लॉस रख के भी आप एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स ए वेरी गुड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सेम वे अगर मल्टीपल बॉटम्स बनता है आपके इंट्राडे चार्ट्स, या मान लीजिए कोई भी टाइम फ्रेम में बना और बाजार अगला दिन उसके ऊपर खुलता है, तो मल्टीपल बॉटम्स के हिसाब से भी एक प्राइस एक्शन ट्रेड मिल जाएंगे। रेक्टेंगल्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस, तो ये सब जो है ये मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से नहीं है, ये पूरे दिन में कभी भी हो सकता है। सो इफ यू आर ए फुल टाइम ट्रेडर, दिस कैन बी गुड स्ट्रेटजीज यूजिंग प्राइस पैटर्न्स। इंडिकेटर्स एंड क्रॉसओवर्स अगेन अच्छे अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आप लोग फुल टाइम ट्रेडर्स हो या मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिस करते हैं, तो इंडिकेटर्स होते हैं जैसे MACD बोलिए, बॉलिंजर बैंड्स, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। RSI इंडिकेटर्स होते हैं। और अगर इफ यू सी क्रॉसओवर्स, यू कैन हैव एवरेज क्रॉसओवर्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, एंड अगर क्रॉसओवर होता है एंड साथ में अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया, तो आपको एक गुड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मिल जाएगा, बिकॉज अगेन risk reward is fully in your favor. So these are good trading opportunities. This again can be at any point of the day. Now stocks hitting any all time highs and all time lows, ये भी बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है कि आपने मार्क किया कि कोई स्टॉक है ऑल टाइम लोज या ऑल टाइम हाइस के नजदीक पे है, तो उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेंगे तो एकदम जल्दी आपके पैसे बनने की चांसेस है। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव strategy of trading price action using ATH and ATL. अभी हम बाजार में हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ट्रेंड उतना क्लियर नहीं है एंड स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स मूव करते हैं इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप देखेंगे तो देर आर सर्टेन हेवी वेट्स इन द मार्केट लाइक ITC और से रिलायंस इंडस्ट्रीज या हिंदुस्तान लीवर। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि बाकी के लार्ज कैप्स एब्सोल्युटली मार्केट में
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट आप देखेंगे कि आईटीसी सिर्फ मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है या आईटीसी सिर्फ मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। सिमिलरली मेनी डेज आप देखेंगे कि इट इज ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज विच इज मैनेजिंग द एंटायर शो। अगर आपको नजर आता है तो प्राइस एक्शन के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अगर आप इस ग्रुप को पकड़ते हैं तो बाजार मान लीजिए कहीं पे भी जाए, बट आपका पैसा अच्छा बन जाएगा, बिकॉज निफ्टी को एक लेवल पे रखना है तो रिलायंस या आईटीसी को मैनेज करके कभी कभी बाजार को चलाते हैं ये एफआईएस लोग। तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन के लिए, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टॉक आज मार्केट को चलाने वाला है। ये बहुत रेगुलरली होता नहीं है, बट महीने में 2 या 3 दिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। शायद कल या परसों भी अगर आपने देखा होगा, रिलायंस में अच्छा सा मूवमेंट आया था, तो दैट वाज इंडेक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अगर किसी ने अच्छा ट्रेड लिया होगा प्राइस एक्शन में तो इजिली 12-15 रुपए का मूवमेंट ही कुड हैव कैप्चर्ड इन द ट्रेड। वन मोर स्ट्रेटेजी फॉर प्राइस एक्शन इज डाइवर्जेंस इन इंडिकेटर्स। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर आप लोग में कोई एमएसीडी फॉलो करता है और मान लीजिए एमएसीडी इज शोइंग वीकनेस कोई स्क्रिप्ट में, मतलब फोर्स और मोमेंटम निकल गया, तो नॉर्मली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फोर्स एंड मोमेंटम निकलने से प्राइस को नीचे आना चाहिए। बट कभी कभी हम क्या देखते हैं कि एमएसीडी वीक है बट प्राइस इज गोइंग अप, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो ऐसे टाइम पे आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छे से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मिल जाएगा, बिकॉज डाइवर्जेंस की वजह से देयर विल बी वीकनेस बट द मार्केट इज सेलिंग कि द प्राइस इज गोइंग टू गो अप, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली होने की चांसेस होती है। तो आपको एक इमीडिएट मतलब 10-15 मिनट में आप एक अच्छे ट्रेड में एंटर करके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस, यूजिंग डाइवर्जेंस also gives you a very good price action trading. Now how to trade individual stocks and indices, मतलब क्या कैंडलस्टिक्स यूज करना चाहिए, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए कैंडलस्टिक्स ऐसे हैं कि हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर पे निर्भर करता है। कई लोग 3 मिनट में काम करते हैं, कई लोग 1 मिनट पे, कोई कोई लोग 15 मिनट पे, बट एज एन एवरेज एक स्क्रिप्ट मूवमेंट के हिसाब से मैंने थोड़े स्टडीज किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये काम करता है ऐसा नहीं कि नहीं है, बट एज ए सेड इंडिविजुअल कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जमता है कि 1 आवर कैंडल आपके लिए अच्छा है तो आप उसी में काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती है, आप यू आर एबल टू मैनेज द ट्रेड, देन आप कम टाइम फ्रेम में भी काम कर सकते हैं। तो विल डिस्कस बेसिकली कि इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडेक्सेस को किस टाइम फ्रेम में काम करने से इफेक्टिवनेस अच्छा होगा। नॉर्मली हमको पता है इंडियन मार्केट्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत लिक्विड है एंड इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं। कोई भी ट्रेंडिंग डे हो या मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको दोनों में अच्छे वॉल्यूम्स मिलते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो निफ्टी कैन बी ट्रेडेड इन ए 15 मिनट्स और 30 मिनट्स कैंडल, बिकॉज निफ्टी का कॉम्पोजिशन इज डाइवर्स। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए कभी कभी इसमें एक ट्रेंड पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, कभी आधे घंटे लग जाते हैं। तो नॉर्मली 15 या 30 मिनट्स बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग कंडीशंस आप डिसाइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा करके 15 मिनट कैंडल्स पे आपको अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेड्स मिलेंगे। तो 15 मिनट्स इज गुड फॉर बैंक निफ्टी। अब अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में थोड़ा सा बिहेवियरल पैटर्न अगर आपको समझ में आता है। बिहेवियरल पैटर्न की मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई कोई स्क्रिप्ट्स हैं जो एकदम T20 मैच जैसे 10-15 मिनट में पूरा दिन का मूवमेंट कवर कर लेते हैं। कोई कोई स्क्रिप्ट ऐसे है कि पूरा दिन लगता है या शायद अगले दिन तक जाके वो अपना ब्रेकआउट देगा। तो आपको स्क्रिप्ट की जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसकी जो मूवमेंट है, इसकी एक्सपीरियंस, इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तब जाके आप उसको आप एक कैंडल स्टिक के हिसाब से आप उसको पैरामीटर कर सकते हैं। बिकॉज हर एक स्क्रिप्ट को 15 मिनट या हर एक स्क्रिप्ट को हावरली कैंडल में देखने से आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है, ये मैं आपको शेयर करता हूँ एंड होपफुली इट शुड बी यूजफुल फॉर यू। अगर आप देखेंगे हाई बीटा स्टॉक्स के मतलब क्या है, जो मूवमेंट बहुत फास्ट देते हैं। नो क्लासिक एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जुबिलेंट फूड्स लीजिए या एसआरएफ लीजिए या पीवीआर, इसके आप हिस्टोरिकली मूवमेंट्स देखेंगे, नॉर्मली ये आधे घंटे 1 घंटे में बहुत बड़े अपमूव देते हैं। अपमूव की मतलब मैं बात कर रहा हूँ 4-5%, जो इंट्राडे में हमारे लिए बहुत है। मैं इसमें पोजिशनल बात नहीं कर रहा हूँ। तो दिस 4-5% की जो मूवमेंट है वो नॉर्मली जुबिलेंट फूड्स या एसआरएफ या पीवीआर में है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको अगर आप 5-15 मिनट या इससे कम में अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तो आपको प्राइस एक्शन में इसमें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे।
PVR, SRF एंड जुबिलेंट फूड्स। तो इसके लिए मैंने लिखा है ट्रेडर्स एक्सपीरियंस इन प्राइस रीडिंग हेल्प्स टू सेलेक्ट स्टॉक्स। तो आपके अगर स्कैनर्स होते हैं जिसमें अगर आप कुछ फिल्टर्स लगाते हैं कि गिव मी स्क्रिप्ट्स जिसमें 0.5% या 1% मूवमेंट है विच इज मोर देन द पीरियड हाई, ऐसे कुछ क्वेरीज लगाएंगे तो आपके स्क्रीन में मिल जाएगा कि इसमें एक्शन हो रहा है, तो आप तुरंत जाके कैंडल स्टिक चेक करके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दिस आर वेरी गुड ट्रेड्स एंड फटाफट आपका पैसा बनता है। एंड इसमें और एक भी स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए बैंक निफ्टी में कोई बड़ा ब्रेकआउट आपको दिखता है तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस में आप स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी चलने वाला है एंड कोटक महिंद्रा का चार्ट अच्छे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन पे है तो उसको 5 या 15 मिनट के कैंडल में स्टडी कर लेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। नॉर्मली कोटक बैंक इज नॉट ए हाई बीटा स्टॉक, बट समटाइम्स अगर बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना है तो कोटक महिंद्रा में एकदम जल्दी से जल्दी मूवमेंट आ जाएगा, तो आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। सो एक चीज को देख के, उसके कंपोनेंट्स को देख के उसका चार्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। दिस ऑल हैज टू हैपन वेरी फास्ट, आपको सोचने के टाइम नहीं मिलेंगे। इसके लिए इंडेक्स क्या बोलता है, उसके कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं, इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। कौन सा स्क्रिप्ट को देखो, मान लीजिए निफ्टी ऊपर जा रहा है और आप देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक इज गोइंग अप, तो तुरंत आईसीआईसीआई बैंक को चेक कीजिए और कुछ अच्छा प्राइस एक्शन मिल गया उसमें तो फटाफट से आप उसमें ट्रेड ले लीजिए। जैसे हमने हाई बीटा स्टॉक्स की बात की, वैसे लो बीटा स्टॉक्स भी होते हैं बाजार में। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रिप्ट्स ट्रैक करते हैं डाबर या मरी को, ये नॉर्मली इंट्राडे में उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है बिकॉज टिपिकली इनमें एक ट्रेंड फॉर्म होने को मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन लगते हैं। तो इसको अगर आप प्राइस एक्शन में करेंगे तो इसको आपको एग्जैक्टली उसके मोमेंट्स को कंटिन्यूसली वॉच करना होगा और वो जब आपको एग्जैक्टली ब्रेकआउट देगा उस टाइम पे अगर आप ये ट्रेड पकड़ेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा पेशेंस को टेस्ट करता है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के, इसके लिए इसको जरा संभाल के ट्रेड कीजिए। ये इंट्राडे के लिए नहीं होता है, इसको पूरा ट्रेंड फॉर्म होने में ऑलमोस्ट 1-2 दिन लगते ही हैं एवरेज। तो उस टाइम पे अगर आप इसको पकड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए तो इफेक्टिव प्राइस एक्शन ट्रेड मिलेगा आपको। Now one more strategy of seeing is large wick candles. लार्ज विक कैंडल्स हम किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट खुला और अचानक से उसमें बहुत बड़ा सेलिंग आ गया तो आप देखेंगे कि कैंडल की जो नीचे की तरफ जो टेल बनता है विक बहुत बड़ा बनता है। सिमिलरली एकदम नेगेटिव न्यूज हुआ, नीचे खुला और एकदम ऊपर बढ़ गया तो उसमें भी एक विक बनता है। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स में आपको 5 मिनट कैंडल देख के तुरंत प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लेना होगा ताकि आप उसमें इमीडिएटली एक्शन ले सकें। जैसे मैंने बोला स्टॉक्स कैन बी ट्रेडेड इन 15 मिनट्स कैंडल बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। तो 15 मिनट में भी आउटपुट होते हैं, आधे घंटे में भी होते हैं, कोई कोई लोग 1 घंटे में भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो कोई भी चीज अच्छा या बुरा या बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऐसे हम नहीं बोल सकते। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी कैंडल स्टिक में आप काम कीजिए बिकॉज जस्ट 15 मिनट्स में काम करने से आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको एग्जीक्यूशन भी उसके हिसाब से करना होगा। तो बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। सो सी व्हाट टाइम फ्रेम सूट्स यू एंड अकॉर्डिंगली कैंडलस्टिक्स आप फिक्स कीजिए। अभी हमने देखा प्राइस एक्शन में मतलब हमको कैसे तैयारी करनी है ये अब तक देखा। इसमें हम अभी थोड़े से स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे जो बहुत काम आते हैं। बट क्या है कि ये इतने फास्ट होते हैं कि आपको थोड़ा सा आपके स्पीड बढ़ाना होगा या शायद आपके क्वेरीज को इतने फास्ट रन करने होंगे कि आपको इसके आउटपुट्स आपके हाथ में आए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन एंड इजी स्ट्रैटेजी विच इज क्वाइट रेगुलर इन मार्केट, मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको रोज मिलेगा। मतलब रोज मतलब मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे ये स्ट्रैटेजी मिलता ही है। ये शायद आप लोगों को पता भी होगा, बट ये मैं क्यों डिस्कस करता हूँ बिकॉज ये लोगों को पता होता है लेकिन ये ट्रेड कर नहीं पाते हैं बिकॉज अगर आपके पास में डाटा नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। इसके लिए ये स्ट्रैटेजी से ज्यादा है कि इसकी डाटा आपके हाथ में होना चाहिए। So the strategy is open equals to high or open equals to low. This applies to individual stocks and indices. Trading them requires a very fast execution and equally fast data. तो डाटा होना चाहिए। इसके लिए 9:15 को जब बाजार खुलता है तो आप ऐसे क्वेरी रखिए जो आपको मैक्स टू मैक्स 9:16 तक आपको ये आउटपुट दे दे, सो दैट आप ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत फास्ट है, इसके लिए बहुत लोग ये ट्रेड नहीं कर पाते, बट अगर आप करेंगे तो प्राइस एक्शन के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है
रोज कुछ ना कुछ आपको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। दूसरे हमने जो बात किया लॉन्ग बिग कैंडल्स, ये टिपिकली अर्ली मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है कि कोई न्यूज़ बेस्ड है, बाजार एकदम नीचे खुला और ऊपर चला गया या एकदम ऊपर खुल के नीचे आया। ये इंडेक्सेस में भी होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी होते हैं। तो अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करना है, मान लीजिए आप ऑफिस जाने वाले हैं एंड आपका आफ्टरनून के शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग में 9:15 टू से 10:30 11 अगर आप बाजार के लिए दे सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है ओपन हाई लो के साथ। ये लो लॉन्ग विक कैंडल्स का, इसका आप प्रयोग करके अच्छे से पैसा बना सकते हैं। टिपिकली 5 मिनट कैंडल्स में आपके आउटपुट्स इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है अर्ली मॉर्निंग। जैसे हमने डिस्कस किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऑन इंट्राडे एंड डेली चार्ट्स कैन गिव गुड प्राइस एक्शन ट्रेड्स। Go short or long at important zones for quick and fast money. However, be flexible to reverse the trade. तो जैसे मैंने बताया सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ट्रेड ये फुल डे का ड्यूटी है। ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मॉर्निंग में होगा या आफ्टरनून या इवनिंग। इट डिपेंड्स कि उसमें मोमेंटम उस ग्रुप में या इंडेक्सेस में कब आएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड जब आएगा तब बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमको मिलते हैं। एंड जब मैंने बोला कि बी फ्लेक्सिबल टू रिवर्स द ट्रेड, इसका मतलब क्या है? अभी मान लीजिए स्क्रिप्ट का एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। मान लीजिए आपने लॉन्ग ले लिया बट आपको बाद में पता चला कि सेलिंग प्रेशर वहां पे है, तो आपको लॉन्ग को काट के तुरंत यू हैव टू कन्वर्ट टू ए शॉर्ट ट्रेड बिकॉज वो जो सपोर्ट जोन था वो अभी सपोर्ट नहीं है। पीपल आर सेलिंग एट ए सपोर्ट जोन, तो शायद उधर से स्क्रिप्ट और थोड़ा नीचे गिर सकता है। तो वहां पे आपको लॉन्ग ट्रेड को रिवर्स करके शॉर्ट ट्रेड बिठाना होगा। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस जोन पे शॉर्ट कर रहे हैं और बाजार ने बड़ा ब्रेकआउट दिया तो शॉर्ट पोजीशन को आपको काटना होगा और उस एरिया पे उसको सपोर्ट बना के आपको लॉन्ग ट्रेड लेना होगा। तो उस जोन पे अगर आप ट्रेड करते हैं और अगर ट्रेड रिवर्स होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और इमीडिएटली पोजीशन को रिवर्स कीजिए ताकि फ्लो के साथ एक प्राइस एक्शन का आपको अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। So this is very important, especially in support and resistance zone. You have to be very careful, understand what the market is telling, and अगर आपको समझ में आ गया कि बाजार क्या बोल रहा है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ये जोन पे होता है बिकॉज मोमेंटम यहाँ पे इतनी होती है कि वो मोमेंटम खुद आपको पैसा बना के देगा। यू हैव टू जस्ट एंटर एट द एग्जैक्ट प्राइस लेवल, बाकी का बाजार आपको संभाल लेगा वहाँ पे। Mark important zones in Bank Nifty and Nifty charts where it spends at least 2-3 candles on 15 or 30 minutes. A breakdown or breakout from those levels will give quick gains. आपने देखा होगा मेनी टाइम ऐसे होता है कि बाजार थोड़ा सा डल और लिस्टलेस होता है या एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी। तो उस रेंज को आपने मार्क किया और उसके बाद आपको पता चला है कि समवेयर ऊपर या नीचे की तरफ मोमेंटम है, तो उसको एक स्टॉप लॉस बना के उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेंगे तो इमीडिएटली एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। कभी कभी मैंने देखा है बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट की ट्रेड बहुत जल्दी से मिल जाती है एंड निफ्टी में भी 30-40 पॉइंट्स की ट्रेड इमीडिएटली मिलती है। तो प्राइस एक्शन में ये पॉसिबल है। दिस इज इट इज इजीली डूएबल प्रोवाइडेड यू आर एबल टू मार्क द जोन्स। इसके लिए जोन मार्किंग, लाइंस ड्रॉ करना या अपने मेमोरी में इसको स्टोर करना या अलर्ट्स डाल के रखना, जो भी आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स की ये स्टडी होनी चाहिए सो दैट जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आप तुरंत एक ट्रेड मार सकते हैं उस डायरेक्शन पे। दूसरी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है व्हेन इंडेक्सेस मूव ट्रैक द इंडेक्स मूवर्स एंड क्विकली टेक ट्रेड्स। ये बोलने के लिए इजी है बट बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब इंडेक्सेस में अच्छी मूव आती है तो तुरंत आपको स्टडी करना है और देखना है कि इंडेक्स को मूव कौन कर रहा है। अगर आप उस ट्रेड को भी पकड़ लेते हैं तो अच्छी सी एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको मिलती है। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज का दिन आईटी इंडेक्स स्ट्रांग है या बैंक इंडेक्स स्ट्रांग है या फार्मा इंडेक्स आज चला रहा है। कभी कभी आप देखेंगे इंफ्रा इंडेक्स मैनेज करता है, तो अगर इंफ्रा इंडेक्स स्ट्रांग है तो भारतीय एयरटेल या लार्सन जैसे स्क्रिप्ट में आपको ट्रेड मिलेंगे। तो इंडिविजुअल इंडेक्सेस की कंपोनेंट्स को स्टडी कीजिए और इंडेक्सेस को जो संभाल रहे हैं उसको अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा प्राइस एक्शन ट्रेड आपको बैठ जाएगा। आई मीन ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन में बहुत लोगों को लगता है बस बाजार खुल गया मैंने ये ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हर एक ट्रेड के पीछे आपको एक स्ट्रैटेजी, आपकी एक ट्रेडिंग प्लान या आपकी जो ट्रेडिंग रूल है ये होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि 9:15 को खुल गया और आपने कोई ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आप प्लान नहीं करेंगे कि आपको क्या ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो हैव ए प्रॉपर प्लान, हैव ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या।
और उसको अगर करेंगे तो ये आपका एक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये आपका स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। और रिपीटेडली उस स्ट्रेटेजीज को आप करते रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर आपकी बढ़ेगी। और कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा, आप आपके लॉट साइजेस या आपके पोजीशन साइजिंग को बड़ा करेंगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। ज्यादा ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला है। जो चीज आपको समझती है उसमें आपको आपकी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाने से आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो ऑलवेज वर्क ऑन थिंग्स विच यू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में। तो हमने अब तक जो देखे हैं, इसके बेसिस पे हम थोड़े से एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं, तो ऑडियंस को थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं मार्केट में। मतलब होने के लिए तो बहुत हैं, बट अभी जो टाइम है इसमें हम लिमिटेड पोर्शन ही कवर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने जो अभी तक बात किए हैं वो थोड़े से मैंने रीसेंट एग्जाम्पल्स निकाले हैं। तो आई विल शेयर दोज एग्जाम्पल्स। तो आप उसको देखिए, एक मिनट, आई जस्ट शो यू इन माई स्पाइडर। मैं चार्ट्स भी बोलूंगा, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट करके बाद में आप घर पे भी जाके चेक कर सकते हैं क्या है करके। ये मेरा फर्स्ट चार्ट है, एसीसी का चार्ट है। ये 15 मिनट्स कैंडल पे इंट्राडे पे है, तो हम इसको देखते हैं। अभी आप देखिए, ये एसीसी का कल का इंसिडेंस है। अगर आप देखेंगे सवेरे इतना लाल कैंडल बन गया, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस पूरा बैरिश फॉर्मेशंस था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छे फॉल आए। तो अगर आप मॉर्निंग में स्कैन करते हैं 15 मिनट्स में, तो एक अच्छा ट्रेड था कल के लिए, बिकॉज इट ओपन विद अ बिग बैंग। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग आप देखेंगे 1580 और खुला 1690 और नीचे में 1650 या उससे नीचे के लो भी बनाया। तो कोई अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर ने ये देखा होगा, तो इट वॉज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। So this is the first example of ACC based on candlestick formations. अभी सेकंड एग्जांपल हम लेंगे वोल्टास का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल है 12 बजे का कैंडल ऑन 24 दिसंबर। अगर कोई नोट कर रहा है तो आप लिख सकते हैं, इसके लिए मैं स्लोली बोल रहा हूँ। ये एग्जांपल है ओपन इक्वल्स टू हाई का। तो हम वोल्टास का चार्ट देखते हैं। ये देखिए वोल्टास का ये कैंडल है 12 बजे का। यहाँ पे आपको टाइमिंग ये जोन दिखेगा, देखिए 12 बजे का कैंडल जो है 823 का ओपन, 823 का है, उसके बाद 816 का लो मारा एंड बाद में गिरते गया ये। तो ये ओपन इक्वल्स टू हाई का है। एज ए सेड, आपको दिन में कैंडल्स की स्कैनिंग मैनुअली करनी होगी। अगर आप स्कैनिंग नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप कुछ क्वेरीज या कुछ रन करते हैं तो ऐसे आपको आउटपुट्स मिलेंगे, तो आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिंग का आपको होना जरूरी है। मेरे आगे के स्लाइड्स में मैं उसको कवर करूंगा, बट इससे आपको इंपॉर्टेंट समझेगा कि बाजार में रहना इंपॉर्टेंट है और स्टडीज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जांपल है कैंडल्स में, जो है टाइटन। अगेन 15 मिनट्स कैंडल, 23 दिसंबर का कैंडल है, 3:15 टाइम वाला। ठीक है, हम देखते हैं टाइटन। ये देखिए क्लासिक ग्रीन कैंडल, ओपन इक्वल्स टू लो, 1483 ओपन हुआ और 1483 का लो बनाया। और देखिए उसके बाद जो ट्रेंड है, इसमें एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के हिसाब से। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज आपको एंड ऑफ द डे में फॉर्म होगा। जैसे ये टाइटन क्लासिक एग्जांपल है। अभी मान लीजिए 3:15 को आपने देखा, तो 15 मिनट में शायद आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। अगर आपने किया तो ठीक है, बट अगला दिन भी अगर आप लेते तो एक अच्छा ट्रेड मिलता आपको। तो इसके लिए कभी कभी एंड ऑफ द डे कैंडल्स भी आपको देखना जरूरी है। वो अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से ट्रेड मिलेंगे। अभी हम देखते हैं रिलायंस का कैंडल 15 मिनट्स में। ये है 3:15 का कैंडल, 23 दिसंबर का। ये देखिए ओपन इक्वल्स टू लो एंड बाद में देखिए क्या आपको हो। यही मैं बोल रहा था, कभी कभी क्या होगा एंड ऑफ द डे में अगर आप ऐसे मोमेंट देखते हैं
तो अगला दिन के लिए एक अच्छा सा ट्रेड भी मिल जाएगा आपको। तो मतलब आपका नेक्स्ट डे लिस्ट में एक प्रोबेबल हाई हाई प्रोबेबल ट्रेड रेडी रहता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसमें ओपन इक्वल्स टू लो था। अभी हमने एक स्ट्रैटेजी देखा था कि प्राइस एक्शन में ऑल टाइम हाइस के नज़दीक में जब स्क्रिप होता है तो उसको हम ट्रेड करेंगे तो हमको अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेड मिलेंगे। तो आप लोग ने देखा होगा रिसेंटली टीसीएस ने एक अच्छे से पैटर्न दिया था, हम उस पर देखेंगे। सॉरी टीसीएस नहीं, आई एम सॉरी, इन्फोसिस, वेरी सॉरी। ये इन्फोसिस है, 22 दिसंबर का कैंडल है 1 बजे का। इसमें आप देखिए ओपन इक्वल्स टू लो है। लो थोड़ा सा नीचे है 40 पैसा 25 पैसा, बट दैट इज फाइन। वहां से देखिए एक नया ट्रेंड भी मिला और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिला है। अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया सा ट्रेड था, ऑल टाइम हाई के नजदीक पे ये ट्रेड आया। तो एटीएच अगर नोट करेंगे तो प्राइस एक्शन में बहुत आपको हेल्प आएगी। तो जो भी स्क्रिप्ट एटीएच या एटीएल के सामने है, इसको नोट करके मार्केट में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से ट्रेड में बैठ सकें। अभी हम दूसरे एक ऑल टाइम हाई का एग्जांपल देखेंगे, मैरिको के चार्ट्स। मैरिको के डेली चार्ट्स में आइए, 2 दिसंबर का हम देखेंगे मैरिको इंडस्ट्रीज। ये देखिए मैरिको ने ऑल टाइम हाई के आसपास में बंद दिया था और देखिए बाद में जो ब्रेकआउट दिया। तो अगर आप एंड ऑफ डे में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ऐसे चीज़ों को भी नोट करना है, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे प्राइस एक्शन में यू आर रेडी टू टेक द ट्रेड। 381 में खुला और 392 का हाई, बहुत बढ़िया सा ट्रेड था ये। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जब बंद होता है एंड अगला दिन पे अगर मान लीजिए एफएमसीजी इंडेक्स में अच्छे से ट्रैक्शन देते हैं, जैसे आप देखते हैं आईटीसी अच्छा है, हिंदुस्तान लीवर अच्छा है, ब्रिटानिया अच्छा है, तो जाहिर है मरीको में भी प्रेशर आएगा ऊपर की तरफ। तो बस उस ट्रेड को लेना है। इसके लिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट प्राइस जोन्स को मार्क करना बहुत जरूरी है। तो आप जब रात को होमवर्क करते हैं आपके चार्ट्स में, तो ऐसे चीज को नोट कीजिए जहां पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो दिस इज क्लासिक एग्जांपल कि स्क्रिप्ट ने एटीएच पे बंद दिया और अगला दिन फॉलो थ्रू भी दिया। अभी हमने थोड़े पैटर्न्स के भी डिस्कशन किए थे, कंजेशन जोन्स के। तो कभी कभी पैटर्न ब्रेकआउट में भी ड्यूरिंग द डे आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, अजंता फार्मा। अभी देखिए अगर ये किसी ने पैटर्न बनाया होगा तो उसको पता था कि 4 तारीख को इसने अच्छा एक पैटर्न बनाया एंड अगला जो ट्रेडिंग डे था 7 तारीख को, इट गेव ए बिग कैंडल। प्राइस एक्शन के लिए इससे बढ़िया ट्रेड सेटअप किसी का हो नहीं सकता कि आपने मार्क किया और अगला दिन आपके कैंडल्स के हिसाब से आपने एक ट्रेड इसमें बिठा दिया। तो ब्यूटीफुल ट्रेड। सो पैटर्न्स भी काम करते हैं कभी कभी। ऐसे एक था, थोड़ा पुराना एग्जाम्पल है फिर भी हम देखते हैं, टेक महिंद्रा। ये एक्चुअली अप्रैल का है बट फिर भी ट्रेड इज अ ट्रेड। ये देखिए ये जो था कंजेशन जोन से, तो इसको प्राइस एक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे तो बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। बिकॉज क्या होता है, ऐसे पैटर्न से आपको पता चलता है कि एक बुलिश ट्रेंड है। तो इसको अगर आप रडार में रखेंगे तो ये एक दिन नहीं, आगे चल के बहुत दिन तक आपको प्राइस एक्शन में ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे। तो जब मैंने आपको पैटर्न की एग्जांपल दिया, द आइडिया इज एक बार बुलिश पैटर्न बन गया तो आपको पता है कि इसका ट्रेंड बुलिश है। तो रोज उस चार्ट्स पे नजर रखिए, बिकॉज वहां पे प्राइस एक्शन के ट्रेड्स के बनने की चांसेस ज्यादा है एंड प्रोबेबिलिटी इज विथ यू। रिस्क रिवॉर्ड में आपको अच्छे प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। तो ऐसे बनाने से अगला 8-10 दिन तक आप इसमें देखिए कितना बड़ा अप ट्रेंड था। ये अप ट्रेंड चालू चालू हुआ 1 जून को और लगभग 10 जून तक गया, मतलब 8-9 दिन था। इसमें डेफिनेटली अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे एंड बाद में रिवर्सल्स भी आपको मिले। वो भी आपने कैंडल स्टिक्स या कोई पैटर्न के हिसाब से देखा होगा। तो नीचे का जर्नी ऊपर तक और ऊपर से जर्नी नीचे तक, तो प्राइस एक्शन के लिए परफेक्ट है। तो पैटर्न्स को भी नजरअंदाज मत कीजिए, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। इसके लिए मैंने पैटर्न्स भी बोला है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि स्क्रिप्ट में आगे कैसे ट्रेंड होने वाला है इसका। और एक एग्जांपल था जस्ट डायल, जो हम रेक्टेंगल ब्रेकआउट्स बोलते हैं, टिपिकली फ्लैग है रेक्टेंगल। ये देखिए ये जो निकला, ये पहला एक रेजिस्टेंस से निकला, फिर ये बड़ा रेजिस्टेंस से निकला,
एंड कंटिन्यूसली अप। तो सोचिए, इस अगर चार्ट को भी आपने पकड़ लिया तो अगला 6-7 दिन के लिए प्राइस एक्शन के लिए बढ़िया ट्रेड मिल गया आपको। यू हैव टू जस्ट कीप विजिटिंग द कैंडल्स एंड जब जब न्यू हाइस बनाता है ट्रेड पे बैठ जाइए, अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। तो अंडरटोन जब बुलिश है तो आपको पता है आगे फॉलो अप आने वाला ही है। अभी हम ओपन लोस के थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे। भारत फोर्ज 24 तारीख का, ये देखिए कल का एग्जांपल है। ओपन 505, लो 505, 540 का हाई, ब्यूटीफुल ट्रेड। यही मैंने बोला कि अगर आप कोई स्क्रीनर रखते हैं या मैनुअली आप स्कैन कर सकते हैं तो आपको फट करके ये मिल गया तो ये ट्रेड ले लिया आपने और आपका काम हो गया। तो बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिलता है इससे। कल इनफैक्ट ओपन हाई वाला ओपन लो वाला बहुत सारे ट्रेड्स थे। बायोकॉन देखिए कल ही का दिन, देखिए ओपन हाई सेम 486.25, 486.25, नीचे में 472, प्योर प्राइस एक्शन, और कुछ देखना नहीं है आपको इस पे। डॉक्टर रेड्डी देखिए, अभी इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। अभी आपने देखा होगा कि कल के दिन मान लीजिए आपने पहले स्कैन किया, आपको बायोकॉन मिला, ठीक है। तो अगर आपको दिखा कि बायोकॉन में ऐसा है तो ये फार्मा का कंपनी है, तो क्या करना है, 2 मिनट टाइम लीजिए और बाकी के फार्मा में भी देखिए। तो क्या होगा, बायोकॉन देखा आपको रेडी भी मिल गया। बिकॉज एक इंडस्ट्री का अगर एक पे पैसा बनाता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद और एक स्क्रिप्ट में भी ये पैटर्न बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा इसका गारंटी नहीं है, बट हम देख सकते हैं। तो उतना आपका डाटा आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे करने से भी आपको सेम इंडस्ट्री में एक दो अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। आपका मॉर्निंग का स्ट्रेटेजी, आपका डेली कोटा ऑफ प्रॉफिट्स बन जाएगा। तो विल बी हैप्पी, अच्छा वीकेंड भी बन जाएगा आपका। तो हमेशा अगर आप कोई लार्ज कैप में देखते हैं तो उसी इंडस्ट्री में देखिए कि जैसे अगर मान लीजिए इन्फोसिस में ओपन लो मिला तो टीसीएस देखो, विप्रो देखो, माइंडट्री देखो, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न आपको मिल जाएगा। बिकॉज एवरीथिंग मूव्स इन ए ग्रुप। बट ये उस टाइम पे आपको क्लिक होना चाहिए बिकॉज समय बहुत कम है और उस टाइम पे चेकिंग भी करना है, ट्रेड भी बिटाना है और प्रॉफिट्स भी लेना है आपको। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट। गेल का चार्ट देखिए, देखिए 119 लो, 119 ओपन इक्वल्स टू लो और 123। गेल क्या है, फ्यूचर्स में बड़े लॉट साइज है। अगर किसी ने फ्यूचर्स में ट्रेड बिटाया होगा तो अच्छा सा पैसा बन गया उसका। अभी हमने गैप्स के बारे में बात किया कि गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो जब गैप्स फिल होते हैं तो उस टाइम पे भी आपको अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेड्स मिलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि विप्रो का एक एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई गैप स्टडी करता है तो विप्रो में अगर आपको याद होगा तो एक बड़ा गैप डाउन था। ये कब हुआ ये भी बोलता हूँ। 14 अक्टूबर को एक गैप डाउन हुआ जब उन्होंने बाई बैक अनाउंस किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरे गैप जोन पे इसने ट्रेड किया और कल जाके इसने गैप अप किया। तो ये एक अच्छा सा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बैठ जाता है बिकॉज प्रीवियस गैप फिल हो गया एंड वहाँ पे अच्छा बाइंग प्रेशर है। तो इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो गैप जोन्स को भी ट्रैक कीजिए, अच्छे से प्राइस एक्शन ट्रेड्स मिलेंगे। बिकॉज उस एरिया पे प्रेशर, अगर काउंटर प्रेशर डेवलप हुआ तो आपको उस डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है एंड द मोमेंटम विल बी वेरी फास्ट। 3-4% का मूव बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। लेकिन दिस इज अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेटेजी, तो आपको अलर्ट रहना है बिकॉज गैप अप गैप डाउन 9:15 को होता है, ड्यूरिंग द डे नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल इंडिविजुअल कैप कैंडल्स में गैप अप हुआ वो डिफरेंट है, बट मोस्टली गैप अप्स मॉर्निंग पे इफेक्टिव रहते हैं जब बाजार खुलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के थोड़े ट्रेड्स देखते हैं हम। अभी टाटा मोटर्स अगर कोई यहाँ पे ट्रेड करता है या उसका चार्ट किसी को याद है तो ये 152 वाला लेवल बहुत दिन तक बाजार इसी पे अटका था। ये अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2 सितंबर से लेके 14 नवंबर, मतलब 2 महीने का ये बड़ा रेजिस्टेंस था। और इसके बाद जब निकला तो बड़ा अपमूव आया। तो अगेन एंड ऑफ द डे स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने बोला कि मे बी एंड ऑफ द डे में आप ले सकते थे छोटा सा ट्रेड, या इसको स्टडी करके अर्ली मॉर्निंग स्ट्रैटेजी नेक्स्ट डे आपने लिया प्राइस एक्शन में, अच्छे से ट्रेड मिला। एंड आगे के फॉलोअप्स में भी बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिले होंगे प्राइस एक्शन में। बिकॉज जिसमें ट्रेंड है उसमें प्राइस एक्शन ट्रेड्स मिलना ही है, अप साइड या डाउन साइड दोनों मिलेगा। अभी रिसेंटली सिप्ला में ब्रेकआउट हुआ था, आप देख सकते हैं। सेम देखिए, ये 814 का जो लेवल था उसने निकाला। तो सेम एंड ऑफ डे एंड नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। ऐसे हम एक ट्रेंड लाइन के ट्रेड भी देखते हैं बिकॉज ट्रेंड लाइन में भी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है,
ये भी 2-3 दिन पहले की ट्रेड देखिए, हिंदुस्तान यूएस ड्यूरिंग द डे निकला। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये अगर आपने लाइन डाला है और ये लाइन ब्रेकआउट होता है बाजार के बीच में, उसके ऊपर अगर आप प्राइस एक्शन लेते हैं तो आपको पता है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है इतने दिन से उसको काटा है, तो उसके ऊपर ही जाना है। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, जो लेवल तोड़ा उसके बाद अच्छा सा ऊपर गया। तो दिस इज इंट्राडे ट्रेड। तो इसका जब होगा तब होगा, तो ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मॉर्निंग का ट्रेड है, आफ्टरनून या लेट इवनिंग का। ये जब होता है तब आपको बाजार में स्कैनिंग करके ऐसे ट्रेड लेने पड़ेंगे। बट अगेन वेरी गुड इफेक्टिव ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड की हिसाब से। टाइटन देखिए, जब लाइन तोड़ रहा है तो देखिए कितने अच्छे ट्रेड मिलते हैं यहाँ पे। इस जोन पे मिला, फिर वापस लाइन टच किया अगेन, तो बार बार एग्जिट एंट्रीज, गुड प्राइस एक्शन ट्रेड। सो ऐसे ऐसे होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेड। सो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन भी करना है तो थोड़ा बहुत आपको चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप ले सकते हैं। ऐसे ही विदाउट एनी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन करना बहुत मुश्किल है। नाउ हम जो अभी जो एग्जांपल्स देखे हैं, ये एग्जांपल्स अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे। आप जब प्रिपरेशन करते हैं ट्रेडिंग के लिए, मान लीजिए आप रात को स्टडी करते हैं या बिफोर द मार्केट ओपन, तो थोड़े से चीज हैं जिसपे अगर आप ध्यान रखते हैं तो यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। जैसे हमने देखा था, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको नोट इंपॉर्टेंट चार्ट, स्पेशली फुल ग्रीन कैंडल्स ऑन डेली चार्ट फॉर फॉलो थ्रू। मतलब अगर एक एंड ऑफ द डे का कैंडल, मतलब डेली कैंडल पूरा ग्रीन बंद हुआ है, अगला दिन इसमें फॉलो थ्रू आएगा, मतलब तेजी की कंटिन्यूटी होगी। या मान लीजिए तेजी की कंटिन्यूटी नहीं होती है, ओपन इक्वल टू हाई बन गया, तो आपको पता है कि पहले दिन इसमें बाइंग था और आज ओपन इक्वल टू हाई हो गया, तो सब लोग ऊपर में फंसेंगे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ग्रीन या रेड कैंडल आपके स्टडीज में होना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू मिला या उसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, दोनों साइड का आपको ट्रेड मिल गया। ऐसे ही आपको नोट करना है हैमर कैंडल्स, लॉन्ग विक कैंडल्स, इंडिसिसिव कैंडल्स जो डेली कैंडल्स में है, टू सी नेक्स्ट डे उसमें फॉलो थ्रू कौन से डायरेक्शन में आता है। एंड आपने देखा होगा सपोर्ट स्टॉक्स विच आर क्लोजिंग एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे हमने सिप्ला या बायोकॉन में देखे थे, वैसे डाबर मरिको में देखे थे, वैसे कैंडिडेट्स जो अगले दिन आपको अच्छे ट्रेड दे सकते हैं। इंडिकेटर डाइवर्जेंस जो हमने बात की कि अगर एमएसीडी वीक है और चार्ट स्ट्रांग होते जा रहा है, अगर बाव ऊपर ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट डे में अच्छा ट्रेड मिलेगा। चार्ट क्लोजिंग नियर हाई और लोस, क्लासिक एग्जांपल इज इन्फोसिस और मरिको। तो यू नो कि अगर ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे बंद हुआ है तो नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू डेफिनेटली आएगा, तो हम रेडी हैं एंड अच्छा सा ट्रेड हमारे पास में है ट्रेड करने। नो, व्हाट आर द रूल्स फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? देखिए हर एक ट्रेडिंग का एक रूल होता है, एक उसूल होता है। अगर आपको अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है तो ये सब सर्टेन फंडामेंटल रूल्स जो हैं ये आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट रूल इज बी ए गुड टेप रीडर। टेप रीडर का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले प्रेजेंटेशन में भी आपको बोला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस मूवमेंट, जो स्क्रिप्स की प्राइस है इंट्राडे पे कहाँ घूमता है, ओवरऑल इसकी पोजीशन कहाँ है, ये कहाँ पे बेस बना रहा है, इसकी अच्छी सी आपकी मेमोरी होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक आपके बाएं हाथ या दाएं हाथ का खेल है, वैसे अगर आप रिमेंबर करेंगे तो प्राइस एक्शन में बहुत इफेक्टिव होगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला, एनालिसिस करने का टाइम बहुत कम होता है आपके पास में, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी फास्ट। तो इफ दिस लेवल्स आर देयर इन योर माइंड, आपका ट्रेडिंग विल बी मच बेटर। सो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान एंड फॉलो द कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम स्ट्रिक्टली फॉर बेटर रिजल्ट्स। नो, ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या है कि अगर आपने समझा कि प्राइस एक्शन में इतने सारे स्ट्रैटेजीज हैं, तो पहले आप देखिए कि कौन से स्ट्रैटेजीज आपके लिए आइडियल है, जिसको आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50 स्ट्रैटेजीज पढ़ लिया आप 50 के 50 करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको सेलेक्ट करना है आपके हिसाब से कि ये 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं कर सकता हूँ, तो उसको समझ के उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। एंड अगर कैंडल स्टिक्स आपको 15 मिनट का जमता है या 30 मिनट का जमता है तो उसको स्टेम रखिए। ऐसा नहीं कि आज 15 दिन में काम किया, कल 30 मिनट में, परसों 1 घंटे में, नहीं। एक सिस्टम को फॉलो किया तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अगर आप उसको टाइम देंगे तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा। हर एक दिन सिस्टम्स या प्लान को चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे।
The third most important thing is you are a trader and more specifically price action trader. Hence be very fast in execution, profit booking and cutting positions. सभी चीज में फास्ट होना है. अपने दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत डालिए. बाजार जो बोलता है आपको उसके हिसाब से एक्ट करना है. Your aim should be to take more entries which fall in your trading zone and keep moving. जब मैं बोलता हूँ मोर एंट्रीज, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 50 ट्रेड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मोर एंट्रीज का मतलब है कि अगर आपके जोन में, आपका जोन मतलब जो आपको समझता है, जो आपके जोन पे है, अगर ऐसे एंट्रीज मिलते हैं तो उस पर फोकस कीजिए सो दैट आपका पैसा बनता रहे और आप आगे बढ़ सकें. इसके लिए आपको आपकी लिमिटेशंस, आपकी स्ट्रेंथ्स जो है इसकी एक समझ होनी बहुत जरूरी है, तब जाके आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. बी ओपन टू टेकिंग लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट ट्रेड्स. ये क्यों मैंने लिखा है कि बहुत टाइम हम देखते हैं कि लोग लॉन्ग ट्रेड्स लेने में जल्दी करते हैं, शॉर्ट ट्रेड्स लोगों को जमता नहीं है. नो, आई कैन नॉट बी गोइंग शॉर्ट. मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकता, ऐसे कोई चीज नहीं है. जैसे लॉन्ग है वैसे शॉर्ट है. तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको डायरेक्शन चाहिए, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है. तो डोंट वरी अबाउट द टाइप ऑफ द ट्रेड. जस्ट यू वांट अ प्राइस एक्शन टू मेक क्विक बक्स. आपका रोल है प्राइस एक्शन देखना है और आपको फटाफट पैसा बनाना है. सो शॉर्ट ट्रेड हो या लॉन्ग ट्रेड हो, आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए एंड यू शुड बी फास्ट. बी फ्लेक्सिबल टू क्विकली चेंज योर व्यू एंड सिट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड. ये हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के टाइम बात की कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि मैं भी मेरा व्यू चेंज करूं. ऐसा नहीं कि मेरा तेजी का व्यू था तो मैं तेजी में रहूंगा. अगर तेजी से बाजार मंदी में आ गया तो आपको भी मंदी का व्यू लेना ही होगा. सो नेवर आर्ग्यू विद द मार्केट, फ्लो विद द मार्केट. Decide which strategy suit you and trade accordingly. Don't open up fronts which you cannot control. बहुत सारे चीज को लेके ट्रेड मत कीजिए. जो आपको समझना है, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, भले ही एक स्ट्रैटेजी हो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि कंसिस्टेंटली आपको पैसा बने आपके अकाउंट. थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट में भी बात करना है, बिकॉज कोई भी ट्रेडर हो, ट्रेंड फॉलोइंग हो, पोजिशनल हो, जो भी ट्रेड होता है, आप जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो, सभी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है. रिस्क मैनेजमेंट जो ट्रेडर फॉलो नहीं करेगा वो मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा एंड उसके सब कैपिटल ब्लो अप हो जाएंगे. इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड खास करके प्राइस एक्शन जब आप करते हैं जहाँ पे आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं, इसके लिए स्टॉप लॉसेस भी बहुत कम आने चाहिए एंड टारगेट्स भी बहुत कम. कम का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि लिया और बेच दिया, बट यू हैव टू बी फास्ट कि अच्छे प्रॉफिट दिखते हैं एक बार बुक कर दो. ऐसे नहीं कि और ज़्यादा ऐसे वेट नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई टू वर्क ऑन ए मिनिमम ऑफ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. 1:2 का मतलब क्या है कि कोई अगर आप ट्रेड लेते हैं जिसमें ₹2 का आपका स्टॉप लॉस है, तो अगर ₹4 प्रॉफिट बन गया तो बुक कर लीजिए. इससे क्या होता है कि अगर 50% भी आपका स्ट्राइक रेट है, मान लीजिए आपने दिन में 10 ट्रेड किया, 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट अगर 5 ट्रेड्स भी 1:2 के हिसाब से बैठ गया तो आपके प्रॉफिट्स अच्छे रहेंगे आपके हाथ. तो ऑलवेज वर्क विद 1:2. इट इज ऑलवेज अबल. मेनी पीपल वर्क 1:1, बट आई फील 1:2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आपके कैपिटल में ग्रोथ चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए. 1:1 में आपका कैपिटल स्टैग्नेंट हो जाएगा, ग्रो नहीं होगा आपका. Be alert with what's happening around, especially at market tops or bottoms, since sudden jerks are important. इसका मतलब क्या है? अभी अगर आपने देखा होगा कल का क्लोजिंग निफ्टी का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, बट वो एक टॉप भी है. तो बाजार ने एक मल्टीपल टॉप बनाए हैं. तो अभी मंडे के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग है कि मान लीजिए अगर ये टॉप को निकाल दिया और थोड़ा देर टिक गया तो बाजार नया हाइस की तरफ जाएगा. तो कुछ नहीं, एक बहुत अच्छा निफ्टी का ट्रेड आपको मिल जाएगा. बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी आपके फेवर होगा. यही अगर मार्केट रुक गया तो ये टॉप अगर बन गया और यहाँ पे मार्केट रुका तो यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है. तो ऐसे सिचुएशन पे यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे बट यू हैव टू बी रेडी टू टेक द ट्रेड. सिमिलरली आपके पोजिशंस हैं, कभी कभी कुछ खराब न्यूज़ आ जाता है एंड एकदम मार्केट गिरता है, उस टाइम पे आपको आपके ट्रेड्स को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैं बोलता हूँ कि डोंट ओपन मल्टीपल ट्रेड्स. कई कई लोग होते हैं 10 12 15 ट्रेड ले लेते हैं और अचानक से मार्केट ने झटका दिया, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है. कभी कभी क्या होगा कि आपके ट्रेड में आप देखेंगे 10% आपका स्टॉक नीचे चला गया, आप क्या करेंगे? आप मंडे का एग्जाम्पल ले सकते हैं. इंट्राडे पे ग्लेनमार्क, लुपिन जैसे जो स्क्रिप्ट्स थे,
इतने ऊपर थे और सीधा 10% लोअर सर्किट लग गया था। अभी रीजन क्या है ये मुझे भी पता नहीं है, बट एक 2 मिनट के लिए लोअर सर्किट मरा। अब मान लीजिए आपका लॉन्ग पोजीशन है और आप देखते हैं कि आपका स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। इसके लिए पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कितना ट्रेड्स आप ओपन रख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशफुल थिंकिंग में नहीं रही है कि बाजार हाँ हमेशा अच्छा रहेगा, नहीं, बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो संभालना बहुत जरूरी है। पोजीशन साइजिंग में ध्यान दीजिए हमेशा। बी रूथलेस ऑन स्टॉप लॉसेस, इफ यू होल्ड पोजीशन आफ्टर हिटिंग स्टॉप्स द लॉसेस कैन बी हाई। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ प्लीज तुरंत पोजीशंस को काट लीजिए, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको। Now the most important thing is have a good paid software or any tool which gives live data. पेड सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है। बहुत लोग हमको बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर पे खर्चा करना है क्या, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सॉफ्टवेयर पे जो आदमी खर्चा करेगा वो अच्छा ट्रेडर है। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि ट्रेडर सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनता है, बट आपको जो टूल्स एक पेड सॉफ्टवेयर में मिलता है इससे आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पाइडर जैसे सॉफ्टवेयर है, आप अगर इसको रखेंगे तो आपको डाटा अच्छा मिलेगा और आप क्वेरीज लिख सकते हैं और इमीडिएटली आपको ट्रेडिंग आइडियाज भी वो दे देगा। बहुत सारे क्वेरीज हैं स्पाइडर में, तो आप उसके हिसाब से डाटा एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पुट सुटेबल फिल्टर्स, पुट स्क्रीनर्स या राइट क्वेरीज जो आपको चाहिए सो दैट एंट्रीज कैन बी वेरी फास्ट। एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साउंड इंटरनेट होना ज़रूरी है अगर आप पूरा दिन स्क्रीन पे हो। और ब्रोकिंग अकाउंट स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइम सोशल मीडिया में देखते हैं कि मैंने ये ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा हूँ लेकिन आज मेरा सॉफ्टवेयर खुला ही नहीं, या सवेरे 10 मिनट तक मैं लॉग इन नहीं कर पाया, उस तक मेरा एमटीएम रिवर्स हो गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में लोग ऐसे ब्रोकर्स में अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पे हफ्ते में 2 या 3 दिन देयर आर इश्यूज, लॉगिन नहीं होता है या सर्वर के प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे ब्रोकरेज ओपन कीजिए जहाँ पे 9:15 से 3:30 तक आप एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी, कब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कब बाजार घूमेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। बट एक्सेस रहेगा तो ही आप एक्शन लेंगे। अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे तो एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए हैव एन अकाउंट विद स्टेबल ब्रोकिंग कंपनी। एंड आजकल तो सब जगह में ब्रोकरेजेस कम है, तो गो फॉर ए डिसेंट ब्रोकिंग हाउस जहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, जिनके टेक्नोलॉजी अच्छी है, सो दैट आपको एक्सेसिबिलिटी हमेशा रहेगा। ऐसे जगह पे काम करेंगे तो दिस ऑल एड्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ए गुड इंटरनेट एंड ए स्टेबल ब्रोकिंग अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे बारे में जो है वैल्यू एडिशन जो मैं देता हूँ, जैसे आपको पता होगा स्पाइडर पे, तो आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर एंड अ मेंटर एंड ए कोच। टेक्निकल एनालिसिस के प्रोग्राम्स में लोगों को टीच करता हूँ। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है मेरे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। दिस एंड्स माय प्रेजेंटेशन एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू। Okay, so I would request everyone, if you guys have any query related to this topic, please write down your questions in the question answer box. Okay, sir. There is one question. How did you came open is equal to high? Any scanner for that? Sorry, can you come back, sir? Sorry. Yeah. Open equals How to did high. you, हाँ yeah, how did you came to know open is equal to high? हम्म Any scanner for that? हाँ एग्जैक्टली अभी देखिए ओपन इक्वल्स टू हाई मुझे कैसे पता चलता है, जैसे मैंने बोला है कि इन माई स्पाइडर आई पुट अ क्वेरी, सो एट 9:15 जब मार्केट खुलता है तो आई गेट अ आउटपुट इन विच आई गेट ओपन इक्वल्स टू हाई एंड ओपन इक्वल्स टू लो, दोनों इंडेसेस और मेरे एफ एंड ओ के स्टॉक्स, बिकॉज मैं इतने ही ट्रैक करता हूँ। तो एफ एंड ओ के पूरे जो स्टॉक है प्लस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसका पूरा मेरे को ओपन इक्वल्स टू हाई एंड ओपन इक्वल्स टू लो का
डाटा मेरे पास आ जाता है, उसके हिसाब से मैं मेरा ट्रेड डिसाइड करता हूँ, फटाफट मिल जाता है मेरे को। तो वो क्वेरी आप डाल देंगे और रन करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा जैसे ही बाजार खुलता है। बट इसके लिए एक अच्छा पेड सॉफ्टवेयर जैसे स्पाइडर होना जरूरी है। Okay, sir. Moving on हाँ, to next one. Time frame for intraday price action trading. हम्म, अच्छा, यू आर आस्किंग कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? Yeah, which time हाँ, frame? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंक निफ्टी के लिए मैंने देखा है कि 15 मिनट के चार्ट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप करते हैं तो 15 मिनट में बहुत अच्छा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी मैंने अभी आपको ये, एक मिनट, पीपीटी ओपन करता हूँ। हाँ, जैसे बोला बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट है, स्टॉक्स के लिए भी 15 मिनट या 30 मिनट्स एडवाइजेबल है। और जैसे बहुत जल्दी भागने वाले स्टॉक्स हैं, जैसे हमने बताया जुबिलेंट फूड जैसे एसआरएफ, इसमें अगर आप 15 मिनट में काम करेंगे तो अच्छे प्राइस एक्शन के ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो 15 या 30 मिनट्स इज आइडियल। सम पीपल यूज 5 मिनट में भी काम करते हैं, बट 5 मिनट बहुत जल्दी होगा। उतना आपका आई स्ट्रेन होना चाहिए कि आप देख पाए। 15 मिनट थोड़ा सा आइडियल होता है। बैंक निफ्टी में अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेड्स मिलेंगे आपको। Okay, so हाँ जी, what are the indicators used? देखिए इंडिकेटर्स अगेन अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से है। अगर आप पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मैं दो ही इंडिकेटर यूज करता हूँ। एक प्राइस के जो क्रॉसओवर्स हैं, क्रॉसओवर्स मतलब क्या है, अगर आप दो एवरेजेस पकड़ते हैं, मूविंग एवरेजेस, जैसे से 8 पीरियड मूविंग एवरेजेस एंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज, या 5 पीरियड मूविंग एवरेज और एक 13 पीरियड मूविंग एवरेज, ये आप जरा टेस्ट करके आप आपके स्क्रीन में लगा सकते हैं। तो जब इंडिकेटर्स क्रॉसओवर होते हैं तो आपको एक बाई या सेल का ट्रेड मिलेगा। एंड साथ में मैं एमएसीडी देखता हूँ। ये दो ही मैं ज़्यादा करके देखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं इंडिकेटर्स नहीं लगाता हूँ। बिकॉज एमएसीडी क्या है, मुझे पता चलता है कि फोर्स एंड मोमेंटम उसमें आने वाला है क्या। एंड क्रॉसओवर शो मी द डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में मैं मेरे ट्रेड लेता हूँ। इसके अलावा अगर अच्छे इंडिकेटर्स आपको चाहिए तो बॉलिंजर बैंड्स आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इवन सम पीपल यूज आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो भी अगेन आपको एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि अंडरटोन क्या है। आरएसआई में प्रॉब्लम यही है कि इंट्राडे के आरएसआई और डेली के आरएसआई में आपको वेरिएशन बहुत मिलेंगे, वो आपको स्टडी करने को आना चाहिए। वो अगर आप समझते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स एंड एमएसीडी आर ऑलवेज बेटर। ये आपको अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगे आपको। Okay. हाँ जी, Can you explain the concept of open equal to high? Sorry, हाँ, sorry, that's all. Sorry for the. Can you explain the concept of open equal to low? सी ओपन इक्वल्स टू लो का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज एक स्क्रिप्ट खुला 300 रुपये में, ओके, और उसने 300 के नीचे लो नहीं बनाया और सीधे ऊपर चला गया, मतलब 300 उसका ओपन है और 300 उसका लो भी है, मतलब दोनों इक्वल है, उसके नीचे गया नहीं, तो उसी को लो बना लेते हैं। एंड ऊपर ही चला गया, मतलब उस दिन के लिए वो उसका एक सपोर्ट बन गया। तो मान लीजिए आपने देखा कि 300 ओपन हुआ, लो 300 है, एंड अभी द प्राइस इज 304, तो 300 या उसे एक आठाना नीचे आप स्टॉप लॉस बना के ट्रेड लेंगे, तो एक्सपीरियंस बोलता है कि स्क्रिप्ट ऊपर जा सकता है। से सिंपल लॉजिक है, सेलिंग प्रेशर नहीं है वहां पे बाइंग प्रेशर है। तो लो को सपोर्ट लेके स्क्रिप्ट ऊपर ही जाता है। तो इसके लिए ओपन इक्वल्स टू लो में तेजी करना है, ओपन इक्वल्स टू हाई है तो हाई को पकड़ के मंदी करना है। इतना ही है स्ट्रेटेजी, सिंपल। मतलब उस दिन का लो उसने एस्टेब्लिश कर दिया, वही मीनिंग होगी। अगर फ्रेश मंदी आना है तो वो लो को ब्रेक करना है, तो एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर मान लीजिए आपने ट्रेड नहीं लिया, अगर लो को ब्रेक कर लिया तो लो के हिसाब से आप शॉर्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, अगर लो ब्रेक हुआ वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको समझना है, इसके लिए कैंडल्स का जो प्राइसेस है, ओपन लो लो ओपन है, इसकी क्या कॉन्सेप्चुअली क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। Okay, so how to decide the stop loss as mostly stop moves after stop loss hits?
से देखिए ओपन इक्वल्स टू हाई और ओपन इक्वल्स टू लो में तो हमने डिसाइड हमने देखा कि स्टॉप लॉस जो है वो ही रहेगा। अगर ओपन हाई अगर स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड ओपन इक्वल्स टू लो का स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो उस दिन का लो। अभी देखिए स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमारे पास में ऐसे प्राइस एक्शन तो हमारे पास में ऑप्शन तो है ही ना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो आपको काउंटर ट्रेंड लेके ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होने से आप वरी मत कीजिए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपको क्या नया ट्रेंड बता रहा है उस पर आप ट्रेड कीजिए। दैट इज ओनली वे, बिकॉज स्टॉप लॉस तो हिट होने वाला ही है। फास्ट मार्केट है तो आपको हिट होगा, मैं उससे ना नहीं बोल रहा हूँ, बट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। अगर एक में स्टॉप हिट होता है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा ना। इसके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए और छोटा सा प्रॉफिट रखिए। बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस में आप काम नहीं कर सकते। एट ओपन इक्वल्स टू हाई और ओपन इक्वल्स टू लो मैंने क्यों दिया, इसमें ज्यादा करके स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। आप देखिए वो ट्रेंड आपको मिलता ही है एंड ये रोज होता है हमारा। तो डोंट वरी अबाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स व्हाई आई सेड कि 10 ट्रेड आप करेंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब 5 ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट होगा, बट 50% अगर स्ट्राइक रेट से भी आप काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। बट रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है कि अगर 2 रुपया मेरा लॉस है तो 4 रुपया मेरे को एक ट्रेड में कमाना है, ऐसे ही ट्रेड्स करना है। तो 5 ट्रेड में आप कमाएंगे, 5 ट्रेड में गवा है तो भी नेट रेट 5 ट्रेड में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो डोंट वरी अबाउट स्टॉप लॉस, वरी अबाउट आप अच्छे ट्रेड्स कहाँ ढूंढ सकते। स्टॉप लॉस हिट होगा, एज ए ट्रेडर हमारा भी हिट होता है, बट अगर हम स्टॉप लॉस के ऊपर वरी करते रहेंगे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस को अपने साथ एक जोड़ीदार या फ्रेंड मान के चलिए, तब अच्छा ट्रेडर बन सकता है। अगर आप बोलते हैं कि बिना स्टॉप लॉस का मुझे ट्रेड करना है, ऐसे पॉसिबल नहीं। स्टॉप लॉस लगने वाला ही है। इट इज 100%, यू हैव टू लिव विद इट, उससे कोई पर्याय नहीं है ट्रेडर। Okay, so moving on to next one. What do you suggest? Intraday or swing? What style do you follow in your own trading? सी ये अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आज की वेबिनार जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में मोस्टली आई विल सजेस्ट इंट्राडे, बिकॉज स्विंग में आप प्राइस एक्शन कैसे करेंगे। स्विंग में प्राइस एक्शन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि वी आर प्लेइंग फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे फटाफट से नहीं होता है। ओके, तो आई वुड सजेस्ट अगर आपको प्राइस एक्शन करना है तो द आइडिया इज यू हैव टू ट्रेड ओनली इन इंट्राडे, बिकॉज आई विल टेल यू स्विंग करेंगे तो मार्केट गैप अप्स मार्केट गैप डाउन्स के रिस्क बढ़ते हैं अगर आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो इसके लिए इनिशियली एटलीस्ट, इनिशियली का मतलब क्या है, एटलीस्ट 6 महीना साल भर जब तक आपके हाथ मार्केट में बैठता नहीं है, बी ओनली ए इंट्राडे ट्रेडर। मतलब 9:15 से 3:30 के बीच में जो स्ट्रैटेजीज में आप काम कर सकते हैं उसमें काम कीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होगा, आपने अगर लॉन्ग पोजीशन लिया और मान लीजिए अगला दिन बाजार 2-3 टका नीचे खुला उस स्क्रिप्ट में, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको। सो इंट्राडे पे क्या है, आपका एंट्री एग्जिट फास्ट हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं ये ट्रेड अच्छे से ले सकता हूँ। इसके लिए इनिशियली डू इंट्राडे ट्रेड्स, देखिए कैसे मैनेज होता है, एंड स्लोली अगर आपको स्विंग करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट इनिशियली 6 महीना साल भर तक इंट्राडे को ही रेस्ट्रिक्ट कीजिए, आपको कंट्रोल बेटर रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, अगला दिन का रिस्क आप कैरी नहीं करेंगे। इसके लिए इंट्राडे बोलता हूँ। एंड प्राइस एक्शन जनरली मैंने वर्ल्ड वाइड देखा है, मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर्स आर इंट्राडे। आई हैव नेवर सीन स्विंग एंड ऑल डूइंग इंट्राडे, दैट्स अ डिफरेंट गेम, वो अलग है, वो भी हो सकता है। बट जो लोग मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए प्राइस एक्शन को अगर कंबाइन करना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इंट्राडे भी ही करें, वो इफेक्टिव ज्यादा रहे। Okay, time frame for swing and positional trading. सी अगर आपको स्विंग एंड पोजिशन ट्रेडिंग करना है तो फर्स्ट थिंग इज आपको इंट्राडे के चार्ट देखना नहीं चाहिए। लेट अस बी वेरी क्लियर, बिकॉज अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो मार्केट में उतार चढ़ाव इतना होगा कि आपका पोजीशन निकल जाएगा। तो अगर आपको पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स करना है, मतलब कोई स्क्रिप्ट को लेके थोड़ा दिन होल्ड करके उसमें प्रॉफिट्स लेना है, तो आपका मिनिमम चार्ट देखने का नजरिया होना चाहिए डेली चार्ट्स, एंड आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वीकली एंड मंथली चार्ट्स। इस पे ही आप अगर फोकस करेंगे तो आपका स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स बढ़ेगा। एंड दूसरी चीज स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स में याद रखिए, आपके स्टॉप लॉसेस भी डीप होने चाहिए एंड टारगेट्स भी हाई होने चाहिए।
मतलब रिस्क रिवॉर्ड यही होगा, 1:2 ही होगा वहां पे, बट द वन पार्ट विल बी वेरी हाई एंड द टू पार्ट विल बी ऑल्सो वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए 2 रुपया आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट है 4 रुपया, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया, मतलब गया तो 2, आ गया तो 4। ये आपका प्राइस एक्शन में होगा। बट अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपया और आपका टारगेट होगा 40 रुपया। मतलब 20 रुपया मतलब बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर मान लीजिए आप 500 शेयर लेते हैं 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब गया तो यू आर लूजिंग 10,000 रुपीज। बट अगर वो चल गया ऊपर में तो यू आर मेकिंग इक्वली बिग अमाउंट। तो इन स्विंग ट्रेड्स यू हैव टू कीप डीप स्टॉप लॉसेस, बिकॉज छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे तो कभी भी हिट हो जाएगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर नीचे होने का चांसेस ज्यादा है। एंड उसके एवरेजेस भी अलग होते हैं, एंड आपको उसके हिसाब से, एंड स्विंग ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक। मतलब मैं जब टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ तो स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग का एक अलग से टॉपिक होता है, बट वो उस पोर्शन में कवर होता है। ये ऐसे आधे या 1 घंटे में समझाने वाली चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। बट अगर वो करते हैं तो टाइम फ्रेम शुड बी डेली, वीकली एंड मंथली, एंड ज्यादा आपका फोकस वीकली चार्ट्स पे होना चाहिए अगर स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। Okay, now we're gonna take our last question. What is the difference between EMA and SMA, and which one is better for intraday? ई एंड ओ, EMA and SMA. एस एंड ए समझाने में actually, ये अपने पीपीटी में कही है एक्चुअली। I would request you, this question is from हाँ, Nayank Solanki. ओके। The question clearly, I think. हाँ, So we're gonna skip this one. मेरे को समझ में नहीं आया, ई एंड ओ। EMA and SMA. Difference अच्छा अच्छा, between ई एम ए, ओके ओके, अच्छा ई एम ए एंड एस एम ए, सॉरी सॉरी, गॉट इट। देखिए, नाम क्या बताया आपने इनका? मयंक। Nayank. हाँ, मयंक। मयंक की ई एम ए एंड एस एम ए का मतलब है कि ई एम ए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, और एस एम ए है सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे हम प्राइस एवरेजेस की बात करते हैं तो ई एम ए एंड एस एम ए लोग यूज करते हैं। अगर आप पूछेंगे कि कौन सा इफेक्टिव है तो एवरेजेस के हिसाब से आपको देखना है। जैसे अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो मार्केट में अक्सर आपने देखा होगा, 200 डीएमए, 200 डीएमए, ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है। और अगर आप प्राइस क्रॉसओवर्स की बात करते हैं, जैसे 821 का एवरेजेस आपने रखा या 513 का रखा, तो आपको ईएमए रखना होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सिंपल अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में होता है। तो वो तो आपको, मतलब आपके सिस्टम से मिल जाएगा, मतलब कोई भी आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर में लगाएंगे तो ईएमए एसएमए मिल जाएगा। ओनली थिंग इज हाउ टू यूज इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप प्राइस क्रॉसओवर्स यूज करते हैं तो ईएमए यूज कीजिए। ओनली 200 डे मूविंग एवरेज यूज करना है तो आप एसएमए यूज कीजिए। बाकी सभी चीज के लिए ईएमए इज ऑलवेज बेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बिकॉज एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी 1 to 10 डेज का आपने एवरेज लिया, ठीक है, तो जैसे ही 11th डे आया तो फर्स्ट डे का एवरेज निकल जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। वैसे होता है, मतलब इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द रीसेंट एवरेजेस। सिंपल मूविंग में क्या, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द इक्वल स्प्रेडिंग, पूरा स्प्रेड के लिए वो इंपॉर्टेंस देता है, उतना ही है। सो इफेक्टिवली इफ यू सी, ईएमए इज वेरी गुड फॉर प्राइस क्रॉसओवर्स, एंड 200 डे के लिए सिंपल मूविंग एवरेज, यही रखना है आपको। क्लियर? Okay, thank you, sir. एनी मोर क्वेश्चंस? Yeah, this हाँ, बोलिए। when we buy stocks on particular day in small quantity and out हाँ, of five, two stocks come below the price buying price, can we take away from the next day if next day or later it comes above price? Is it good strategy?
मतलब कोई स्टॉक लिया और उसका भाव नीचे आ गया, ठीक है? Yeah, and हाँ, उसके after, हाँ, उसके बाद ऊपर चला गया फिर से। yeah, below the buying price, can we हाँ, take up the next day? If next day or later it comes above the price. ओके, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक स्टॉक लिया और वो नीचे आया, उसके बाद Yeah, अगला दिन जो बाई प्राइस था उसके ऊपर चला गया तो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राइस एक्शन का मतलब वही है ना कि जो प्राइस को हाई को कट करके ऊपर गया तो आप ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस एक्शन उसी को बोलते हैं ना, कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियस डे का हाई को कट किया मतलब और ऊपर जाना है तो हाई लेवल से स्टॉप लॉस बना के आपको आगे लॉन्ग ट्रेड करना है। परफेक्ट। okay, sir. Um, this guy is who trades in index multi-time frame analysis is important or generally one time frame is better. सी, अगर आप प्योर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे चार्ट देख के करेंगे तो अच्छा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, मतलब इवन इंडेक्सेस में भी अगर आप लंबा खेलना चाहते हैं पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो इंट्राडे चार्ट्स और डेली चार्ट्स को कॉम्बिनेशन करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि ये अच्छा है वो खराब है, इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम डे बाई सेल करके निकलो तो इंट्राडे चार्ट से ज़्यादा मत देखिए, बिकॉज उसी में आपको मिल जाएगा। अगर आपको पोजिशनल करना है कि नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए निफ्टी में अच्छा बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा डेली चार्ट्स का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, तो आप बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। तो डिपेंड्स। आइडियली स्पीकिंग, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो इंट्राडे एंड डेली चार्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन अगर समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया है। बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बिकॉज टाइम फ्रेम एनालिसिस इज समथिंग विच कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस। तो अगर आप कर रहे हैं तो कीजिए उसको, दोनों चार्ट्स को एनालिसिस करके करेंगे तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। इट विल बी ए वेरी गुड स्ट्रैटेजी, इंट्राडे एंड डेली कॉम्बिनेशन। Okay, sir. I think that's all for today's Q&A. Very good. So shall we close it? Yeah, yes, sir. Right. So from my side, big thanks to all the participants again, for taking time off from your schedule and attending. To all of you, Merry Christmas and happy and prosperous New Year, and have a prosperous trading career ahead. Thank you. Thanks.